tell me some unexplainable experience while you were taking that session? क्योंकि जो लोग आते हैं, आप जैसे आपने बताया कि रिसीविंग मोड में रेडी नहीं होते हैं, तो आप सेंड भी नहीं कर पाते हो वो वेव तो एनर्जी, वो वाला मुझे एक कोई स्टोरी बताओ। सो वी हैव लॉट ऑफ देम, बट मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ जो अभी हम लोगों ने साथ बात किया था लास्ट वीक. So when we started playing the singing bowls, and suddenly there was this person who was coughing continuously. So because now that person is not in a rest situation, I said, and someone has paid and trusted me, I have to work on them. So we already, obviously, we start before starting the session. We always take permission. If something goes, then I'll come to you. I'll touch you, and you'll be feeling better. So do I have the permission to come and touch you? Because लोगों को touch से भी डर लगता है, because they feel unsafe, because they might have been a story उनके childhood में. So during this session, when we were playing the singing bowl, suddenly this man started coughing a lot. So I have to literally stop the session and went to him, and I started opening his throat, and I could see a very black dark matter, and I had to remove it. Suddenly we opened and then remove it, and after 2-3 minutes he was all fine. He was not even coughing, and we started the session fine. And during our पूरा 1.5 घंटे का session था, he was into a full rest and sleep mode, and he was snoring because he was right in front of me, and he was snoring and he was sleeping. And when he woke up, he's like, आपने क्या magic किया था जो मेरा throat से मतलब एकदम से I was coughing so badly and suddenly. So that is something very honest, and I can't explain that to person कि हुआ क्या था. I just gave you an healing and work. तो आपने वो रियली में वो ब्लैकनेस उसके थ्रोट We feel it because as a therapist and a healer, we have been trained to, to understand what is going on, and we could see. And I have also experienced this from my healer. She has done the same with me, so I know, yes, these things are like very powerful. And what was your case? so I was also just during a retreat. I was coughing very badly, and I was standing right next to my mentor, and she suddenly has to stop the session, and she just came, and what I did, she did the same to me as a healer, and did it, and suddenly my cough was gone. I don't know कहाँ गया वो. तो कह सकते हैं क्या कि वी आई मीन यू आर राइट, आई शुड नॉट नेम कि एलोपैथी पे जाओ होम्योपैथी पे जाओ, बट आई थिंक व्हाटएवर हेल्थ इश्यूज वी गेट, इट फर्स्ट हिट आवर ऑरा. तो अगर हम लोग विद हीलिंग मोडालिटीज को यूज करेंगे सो इट विल हेल्प अस. So I will not say it hit your aura. वो see, disease is what? Dis-ease. There is something not ease in your body, right? And वो कहाँ स्टोर होता है? It goes in our organs, and हमारे organs, energy centers कहीं ना कहीं स्टोर होता है. So और वो स्टोर कैसे होता है? Because some story might have happened और हमने उसे प्रोसेस नहीं किया. Now it is stored in our centers. So वो हम अगर उसको ऊपर वर्क नहीं करते, हम ना दवाइयाँ खा खा के उसको और सप्रेस करते जाते हैं. अगर हमारे को एक कॉफ भी हो जाता है, एक बुखार भी हो जाता है, हम उसे होने नहीं देते. हमारी बॉडी हील कैसे होगी? टॉक्सिक्स कैसे निकलेंगे हमारी बॉडी से? अब इट इज ब्रूटली सेड, अब जहाँ से जगह है वहीं से निकलेंगे ना. इधर यू विल प्यूक, इधर यू विल रिलीज थ्रू मोशंस और एनीथिंग, राइट? पर ये सब होता है, हम घबरा जाते हैं. हमें फीवर होता है, हम घबरा जाते हैं. लेट योर बॉडी रिलैक्स, हील इट. बॉडी का भी एक तरीका हील होने का, राइट? अब अर्थक्वेक होता है और सुनामी आती है, कुछ होता है, तो हम क्या उसमें इंटरवीन करते हैं क्या? अर्थ क्या कर रही है? वी डोंट डू इट. अर्थ हैज इट्स ओन वे टू हील इट. तो सेम वे हमारी बॉडी को पता है कैसे हील होना है, पर हम उसमें इंटरवीन करते हैं. और फिर आप देखोगे जो जितनी दवाइयाँ खाता है वो और ज्यादा खाने लगता है. वाई? बिकॉज हमने उस इमोशन को, जो हमारा रिलीज हो रहा था, हमने उसे प्रोसेस ही नहीं होने दिया है. सो एंड अगर मैं आपको, जैसे डिजीज की आपने थोड़ी सी बात करी, ऑरा नहीं इफेक्ट होता, हमारी पूरी फिजिकल एलिमेंट खराब हो जाती है, हमारा सब कुछ. एंड वी आर मेड अप ऑफ केमिकल्स ओनली. अगर हमारे पास इतने केमिकल्स है, व्हाई नॉट टैप इनटू इट, व्हाई नॉट ट्यून इनटू इट? yes, with of course hand holding of any therapist, healer, coach, anyone, but you can actually heal yourself. You know how to. Our bodies is very intelligent. They know how to heal. आज एनिमल्स होते हैं, हमारी बॉडी सपोज आज फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर की कोई हम दवाई खाते हैं? वी डोंट डू इट. पॉइंट इज हमारे पास पेशेंस नहीं है. फ्रैक्चर होता है, पेन किलर्स खाते हैं बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू बियर दैट पेन. पेन किलर खाते हैं, बट आप फ्रैक्चर में क्या करते हो? आप उसको बांध के छोड़ देते हो, अपने आप हड्डी जुड़ती है, राइट? करेक्ट. तो
सेम वे भी हमारी बॉडी को सब पता है कैसे ठीक करना है। पॉइंट इज हमारे पास पेशेंस होने चाहिए उसको हील करने का। वी नीड टू गिव इट टाइम एंड विद राइट नॉलेज ऑफ कोर्स। अगर हम सारा टाइम ये सोचते हैं कि मुझे क्यों हो गया है, मुझे क्यों हो गया, हम उसको कर्ज ही करते रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं होगा। फिर आपको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी। ओके, सो आई थिंक हीलिंग में ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि यू हैव टू ट्रस्ट, बिलीव, यस otherwise you're not in a state of receiving. यस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू बिलीव इन इट। जिनका मैंने अभी आपको केस बताया, लाइक ही वाज कॉफिंग, ही वाज इन अ फुल ट्रस्ट एंड सरेंडर मोड। एंड हम लोग जब हम करवाते भी हैं, जब शुरू करते हैं, इंटेंशन इसीलिए देते हैं सो दैट दे ट्रस्ट फुली, यू नो, ओके वी आर गोइंग टू कम एंड टच यू इफ यू डीलिंग विद समथिंग। एंड वो एकदम सडनली दे स्टार्ट फीलिंग सेफ। सो सबसे बड़ी बात क्या होती है दीप्ति, व्हेन योर हीलिंग्स में ना ट्रस्ट एंड बिलीफ। अब भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, बट हम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, देयर इज अ डिवाइन एनर्जी, राइट? सो सेम वे हीलिंग इज आल्सो एन वर्क। आपको उसको बिलीव रखना पड़ेगा एंड पेशेंस। Any such case कि you were putting effort on that person but that person was not in the trust mode, या so आप या what होते was हैं, that बहुत केस होते हैं। So I have this person, she's dealing with a lot of things. But of course, when we started the process with her, she was not at all into the receiving mode because उनकी भी गलती नहीं है, you know, because they've gone through so much traumas and you know so many emotional wounds they're already carrying. So जब आप vibrations उनके through कुछ करते हो, they suddenly went into a fight and fight कि मेरे I'm not liking it, don't touch me or don't do this to me। होते हैं, बहुत cases होते हैं। सो उस केस में क्या करते हैं, पहले हम उनको ईएफटी कराते हैं। इट्स अ प्रोसेस, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक प्रोसेस होता है, वेयर वी टैप इनटू ऑल योर मेरिडियन पॉइंट्स। सो जब आप मेरिडियन पॉइंट्स को टच करते हो तो आपके अंदर जो स्टोर्ड मैटर होता है, सडनली यू आर रिवर्सिंग द होल स्टोरी। सो एक तरीका होता है, होल प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हम बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स देते हैं आप लोगों को, टेक्निक्स देते हैं, आपकी पूरी एक टूल किट बना के देते हैं। सो ईएफटी इज अ प्रोसेस, वो कराते हैं एंड सडनली वो रिलीज होता है एंड थ्रू क्राइंग और इवन एनीथिंग, crying or you know you're using the washroom or you know passing a stool or something, but immediately release होने के बाद then you give them the sound that now they are ready to receive the vibration and so crying is one of the method of releasing your emotions no, I would not say only the crying, हर किसी का रिलीज करने का तरीका no अलग I होता mean है। one of the method. Yes, one of the best method is you cry, you scream, you start puking, or you know you use washroom for your emotions, or you know at times you just want to go into the another space, just lie down, and you might have fever and you know sudden headaches. Yeah, this is a part of the release and healing process. one last question, किसी बंदे को अगर साउंड बाथ हीलिंग में आना है तो उसको कुछ प्री सेटिंग या कुछ प्रिपेयर्डनेस दे हैव टू डू with No, their body or they mind? don't have to do anything. They just have to come with the only one intention कि मुझे किस intention से healing चाहिए, and as you said, your belief. Yes, if I'm going for this thing, something is going to shift in my world, and you will see किसी के किसी और चीज में शिफ्ट होता है, किसी के इमोशंस में होता है, एंड कई लोग तो मैनिफेस्ट ही कर लेते हैं। जैसे किसी के अगर उससे हमारा रिलेशनशिप विद मनी इज आल्सो नॉट गुड। अगर मनी वूंड्स हैं, सडनली किसी का कुछ रुका हुआ था और उसने मैनिफेस्ट किया कि ओके आई वांट टू यू नो मेरा ये जो था, आई वांट टू हील दिस मनी वूंड विद मी, एंड सडनली नेक्स्ट डे समथिंग पॉप्स अप इन द वर्ल्ड एंड लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ। So yeah, that thing happened because अगर वो एक कहीं फंसा हुआ था, so money is energy, right? Very good energy, but हम उसको fear से ऐसे रूट चक्र में ब्लॉक करते हैं। So हम जब रूट से उसको निकाल देते हैं, like you know your fear around money, suddenly आपका open हो गया, now you're vibrating at a higher frequency and you're attracting more. That's So how how's it is. it manifestation related to?